Good morning, everyone. I'm Shashi, and today I'm going to explain the poem Granny's Tree Climbing, written by Ruskin Bond. So, what do we learn in this lecture? We will learn about the poet, we'll know the introduction of poem, the explanation of each stanza, word meaning, rhyming scheme of the poem, rhyming words, and at last the summary of the poem. Then first we talk about the poet. Poet is Ruskin Bond, and Ruskin Bond was born on 1934. He has written many books for children, some dealing with his childhood, others dealing with the lives of contemporary Indian culture. So, Ruskin Bond has written many books for the children, and these books are related with the childhood and the Indian culture of his time. And Ruskin Bond spent his childhood at his grandparents' house in Dehradun. Okay, so he was living with his grandparents in his childhood, where he grew up in the company of a number of pets, and obviously his grandparents had a number of pets, so he got a company of pets. पेट्स होता है जो घर में हम पशु पालते हैं, लाइक डॉग, कैट, दीज आर द pet animals. He developed a deep love for nature, which is evident in most of his work. You can see he was living in Dehradun in his childhood. And Dehradun is a hilly area, and it is full of greenery, forests, and mountains. Okay, so that's why he developed a deep love for nature. Then this is the introduction of the poem. The poem Granny's Tree Climbing has been taken from an island of trees. It means an island of trees is a book written by this poet Ruskin Bond, which is a collection of short stories. And in this poem, what is in it? In this book there is a collection of short stories. उसके अंदर short stories हैं, and poems dealing exclusively with Bond's love for nature. और nature से related कुछ poems हैं जो कि Bond के love को express करती हैं. This poem is about poet's grandmother, and this particular poem, which poem Granny's Tree Climbing, this poem is about poet's grandmother who had a passion of climbing trees even in the age of 62. In poet अपनी grandmother को refer करता है poem, और उनकी grandmother के लिए वो लिखता है कि उनका एक पैशन था क्लाइंबिंग ट्रीज़ पर चढ़ना, ट्रीज़ पर क्लाइंब करना. एंड इवन 62 की एज में भी उनकी ग्रैंड मदर ट्रीज़ पर क्लाइंब करती थी, एंड ही हैड अ पैशन फॉर क्लाइंबिंग ट्रीज़. वी विल सी इन द पोएम दैट what Granny had done to move forward towards her passion. इस पोएम में हम देखेंगे कि ग्रैनी ने अपने पैशन की तरफ मूव करने के लिए क्या किया, एंड हाउ शी हैड कंप्लीटेड हर विश टू लिव ऑन द ट्रीज. और ट्री पर रहने की अपनी विश को उसने कैसे पूरा किया. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. My grandmother was a genius. You would like to know why? Because she would climb trees, spreading her high. She would be up their branches in the trees, and mind you, when last she climbed a tree, she was 62. Ever since childhood, she would had this gift for being happier in a tree than in a lift.
what poet wants to tell us that my grandmother, means the poet's grandmother, was a genius. Genius होता है intelligent. वो कहते हैं कि मेरी जो grandmother है वो मेरी ग्रैंडमदर जीनियस थी, इंटेलिजेंट थी. यू वुड लाइक टू, और तुम जानना चाहोगे कि क्यों. यू वुड लाइक टू नो वाई, तुम जानना चाहोगे कि क्यों. बिकॉज अब वो बताता है कि वाई हिज मदर वॉज अ ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस. बिकॉज शी कुड क्लाइम ट्रीज, क्योंकि वो क्लाइम पर ट्रीज पर क्लाइम कर सकती थी. स्प्रेडिंग और हाई, और चाहे वो ट्री स्प्रेडिंग हो मीन्स फैला हुआ हो, या हाई हो ऊंचा ट्री हो. शी वुड बी अप देयर ब्रांचेस इन अ ट्राइस. इन अ ट्राइस मीन्स वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी से उसकी ब्रांचेस के ऊपर चली जाती थी. एंड माइंड यू व्हेन लास्ट, एंड माइंड यू मीन्स कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, व्हेन लास्ट शी क्लाइम्ड अ ट्री शी वॉज 62, कि जब वो लास्ट टाइम जब वो ट्री पर उन्होंने क्लाइंब किया था तब उनकी एज 62 थी. शी एवर सिंस चाइल्डहुड शी वुड हैड दिस गिफ्ट फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री दैन इन अ लिफ्ट. और वो कहते हैं कि अपने चाइल्डहुड से ही, जब उनकी ग्रैंड मदर चाइल्ड थी तब से ही ये गिफ्ट उन्हें मिला था. एंड वो लिफ्ट में रहने की बजाय ट्री पर ज़्यादा खुश थी. हैप्पियर इन अ ट्री पर ज़्यादा खुश थी. सो विल टॉक अबाउट इट्स राइमिंग स्कीम. यू कैन सी द एंडिंग वर्ड्स ऑफ ईच लाइन. वाई, हाई. So these are two rhyming words. Then you, too. These are similar. Gift, lift. And here also the musical scheme or the musical effect is similar. So its rhyming scheme would be A A, B B, C C. And you know that the similar musical effect, the words that have similar music, so we give them the same number. So A A, Y, high, these are similar. So A A, U and 2 ये दोनों एक similar हैं, तो इनको हम B B देंगे. और गिफ्ट और लिफ्ट इनकी सेम साउंड है, तो इनको हम C C देंगे. सो इसी तरह से पूरी पोइम में 2 लाइन्स जो हैं उनकी राइमिंग सेम है, तो हम उनको A A B B C C D D एंड सो ऑन. हम सो ऑन मीन्स आगे इसी तरह से 2 लाइन्स की राइमिंग सिमिलर है, तो वो ऐसे ही चलती रहेगी. सो राइमिंग स्कीम इसकी A A B B C C D D एंड सो ऑन. ये दिस वन द राइमिंग स्कीम. देन द नेक्स्ट. एंड दो as years went by she would be told that climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, well, I'll grow disgracefully. I can do better. And we had to agree, for in all the garden there wasn't a tree. अब क्या यहाँ पे कहा गया है कि एंड दो एज ईयर्स वेंट बाय, जब कई साल बीत गए, शी वुड बी टोल्ड, उन्हें ये बताया गया कि जब बड़े हो जाते हैं, ग्रू ओल्ड, जब बड़े हो जाते हैं तो वी शुड स्टॉप ट्री क्लाइंबिंग, तो हमें ट्री पर क्लाइंब करना छोड़ देना चाहिए. एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गोन अबाउट ग्रेसफुली, और वो क्यों छोड़ना चाहिए, क्योंकि बड़े होने के बाद हम एक ग्रेसफुल, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना पसंद करते हैं. और ट्री क्लाइंबिंग इज़ अ चाइल्डिश बिहेवियर, ये माना जाता है. सो इसीलिए कहा गया कि जब हम बड़े हो जाते हैं और स्पेशली जब हम एल्डर एज की तरफ जाते हैं, तो हमें ये ट्री क्लाइंबिंग छोड़ देना है. क्यों? बिकॉज ऑफ gracefulness or because of our respect. But grandmother है, she would laugh, वो हंसती हैं
और कहती हैं वेल आई ग्रो डिसग्रेसफुली कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई विल ग्रो डिसग्रेसफुली, मैं बिना रिस्पेक्ट के भी ग्रो कर जाऊंगी। आई कैन डू बेटर, और मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। ने कहा कि इस एज में भी मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। मैं वाई बिकॉज शी हैड अ पैशन फॉर क्लाइंबिंग ट्री, उनका क्लाइंबिंग ट्री का बहुत शौक था। ट्री को देखते ही उन्हें लगता था कि मैं इसके ऊपर क्लाइंब कर जाऊँ, तो उन्हें रोक पाना मुश्किल था। That's why a child and elder person both have this type of features, this type of opinions. ये किसी भी चीज़ को देखकर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। एंड वी हैड टू एग्री, और एट लास्ट क्या हुआ, वो कहते हैं कि हमें एग्री होना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी। फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वॉजंट ए ट्री, और हमारे यहाँ गार्डन में जितने भी गार्डन हैं, ऑल द गार्डन, सभी गार्डन में देयर वॉजंट अ ट्री, कि वहाँ पर एक भी ट्री ऐसा नहीं था। शी हैडेंट बीन अप एट वन टाइम और अनदर, जिस पर वो एक बार या कभी फिर से चढ़ी ना हो। यानी कि हर ट्री पर, उनके आसपास जितने भी गार्डन थे, हर ट्री पर ग्रैंडमा ने क्लाइंब किया था। Having learned to climb from a loving brother when she was 6, ये हमें बताया हुआ है कि ग्रैंडमदर ने ट्री क्लाइंबिंग कहाँ से सीखी थी। तो जब वो बच्ची थी तो उनके एक लविंग ब्रदर, उनके ब्रदर थे, जिन्होंने उन्हें 6 की एज में, when she was 6 years old, तब उनको ट्री क्लाइंबिंग सिखाई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है, but it was feared by all that one day she would have a terrible fall. अब नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि पर हम डरते हैं, हम सब डरते हैं। किस बात के लिए, क्यों डरते हैं? पूरी सभी फैमिली मेम्बर्स ग्रैंडमा के लिए क्यों डरते हैं? दैट वन डे शी वुड हैव अ टेरिबल फॉल। टेरिबल मीन्स डेंजरस, ओके, डेंजरस, राइट है, डेंजरस। सो कहीं वो बुरी तरह से गिर ना जाए, यानी कहीं वो पेड़ से गिर ना जाए। देन आउटकम वॉज अ डिफरेंट, पर वो कहते हैं आउटकम होता है रिजल्ट। आउटकम मीन्स रिजल्ट, परिणाम। पर उनका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट था। वो कभी भी ट्री से गिरी नहीं थी, कभी भी फॉल नहीं हुई थी। वाइल वी वर इन टाउन, और फिर क्या हुआ, एक बार जब वो टाउन में थे, यानी कि अपने घर पर नहीं थे, एंड ग्रैंडमा वॉज अलोन, शी क्लाइम्ड अ ट्री एंड कुडंट कम डाउन। और क्या हुआ कि वो एक ट्री पर उन्होंने क्लाइंब किया, बट शी वॉज नॉट एबल टू कम डाउन, वो नीचे नहीं आ सकी, एंड शी वॉज स्टक ऑन द ट्री। आफ्टर द रेस्क्यू एंड देन द डॉक्टर टुक Granny's temperature and said, I strongly recommend a quiet week in bed. अब उन्हें रेस्क्यू किया गया, उन्हें किसी तरह से नीचे उतारा गया, एंड देन द डॉक्टर को बुलाया गया। तो ग्रैनी के टेम्परेचर को चेक किया गया, और डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि स्ट्रांगली रिकमेंड, यानी बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि अ क्वाइट वीक इन बेड, कि उन्हें बेड पर, यानी उन्हें बेड रेस्ट दे दिया गया 1 वीक के लिए। वी साइड विद रिलीफ एंड टग्ड हर अप विल। पुअर ग्रैनी, फॉर हर इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल। अब क्या कहा गया है कि वी साइड विद रिलीफ, साई होता है डीप ब्रीद, लंबी सांस लेना, डीप ब्रीद, गहरी सांस लेना, विद रिलीफ मीन्स होता है आराम, चैन। सो साइड विद रिलीफ का मतलब है फेल्ट रिलीव्ड, यानी कि आराम महसूस करना। टग्ड हर अप वेल मीन्स पुट इनटू बेड, किसी को बेड में टक कर देना, बेड में रख देना। सो क्योंकि ग्रैंडमा को यहाँ बेड रेस्ट मिल गया है, तो अब सबने एक आराम की सांस ली, एक चैन की सांस ली कि अब ग्रैंडमा को बेड पर रहना पड़ेगा, और अब वो कभी भी ट्री पर क्लाइंब नहीं करेंगी।
पुअर ग्रैनी, पर ये ग्रैनी के लिए कहा गया है पुअर ग्रैनी, बेचारी ग्रैनी। क्यों ग्रैनी बेचारी? क्योंकि फॉर हर इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल। हेल होता है नर्क। सो ये जो सीज़न था उनके लिए एक हेल के समान था, बट ब्रीफ होता है स्मॉल। स्मॉल यानी कि ये जो सीज़न है उनके लिए हेल की तरह था, बट ये सीज़न स्मॉल सीज़न उनके लिए रहा। कन्फाइंड टू हर बेडरूम while every breeze whispered of summer and dancing leaves. Confined means closed, and whispered means speak slowly, धीमे से बोलना, धीरे से बोलना। So confined to her bed, अब वो अपने बेडरूम में ही वो क्लोज हो गई है, बंद हो गई है। पर क्योंकि उनके मन में while every breeze whispered of summer and dancing leaves, यानी कि सीज़न कौन सा था वो? समर सीज़न। यहाँ से भी एक क्वेश्चन है कि पोइम के अंदर किस सीज़न की बात की गई है, तो ये समर सीज़न है। अब ये कहते हैं कि समर सीज़न की जो ब्रीज़ है, ब्रीज़ होती है मूविंग विंड, हवा, चलती हुई हवा। सो हवा जब आवाज़ करती है तो ये कहा गया है कि विस्पर्ड यानी हवा उनके पास आके धीरे से बोलती है। एंड डांसिंग लीव्स, और जो हवा के कारण जो लीव्स झूम रहे हैं, हिल रहे हैं, उनको डांसिंग लीव्स कहा गया है कि वो उनके कानों में आकर विस्पर करती है, हल्के से कुछ बोलती है। इन दिस स्टैंजा we'll talk about the poetic devices. Poetic devices are used in this stanza. So first of all, simile. You know very well that the line where we use like, it was like a brief season in hell. It was, यह था like, किसके जैसा? like a brief season in hell. So यहाँ पर like है तो इस लाइन में यहाँ simile यूज़ की गई है। and while every breeze whispered of summer, every breeze cannot whisper means speaking slowly, so a breeze, a wind cannot speak. So यहाँ पर personification है, क्योंकि personification क्या होता है? जब हम human qualities को non human पे impose करते हैं। so इसीलिए यहाँ पर personification है। and dancing leaves, डांस करते हुए लीव्स, डांसिंग लीव्स। सो यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है, क्योंकि लीव्स को ही डांसिंग लीव्स कहा गया है, जबकि लीव्स जो हैं वो डांस नहीं कर सकते, बट उन्हीं को ही डांसिंग लीव्स कह दिया गया है। मेटाफर क्या होता है? जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उस दूसरी चीज़ को जिससे कंपेयर करते हैं हम उसको वही चीज़ बोल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम कहते हैं कि ही इज़ लाइक अ लॉयन, ही इज़ लाइक अ लॉयन, कि वो लॉयन की तरह से है, तब वहाँ पे सीमली यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने लाइक अ लॉयन कहा है। पर हम ये कहें कि ही इज़ अ लॉयन, वो शेर है, बट ही कांट बी अ लॉयन, एक ह्यूमन बीइंग लॉयन नहीं हो सकता है, बट हम उसकी क्वालिटी को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं लॉयन की तरह से, लॉयन की ब्रेवरी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हमने कहा कि ही इज़ द लॉयन, यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ पर डांसिंग लीव्स कहा गया है, तो इधर भी मेटाफर यूज़ हुआ है। अंडरस्टैंड? देन बट शी हैड हेल्ड हर पीस टिल शी laughed stronger. Then she sat up and said, I'll lie here no longer. But परंतु वो वहाँ पीसफुली रही, टिल शी फेल्ट स्ट्रोंगर, जब तक कि उन्हें स्ट्रॉन्ग फील नहीं हुआ, यानी जब तक कि वो अच्छे से ठीक नहीं हो गई। देन शी सेट अप, तब वो बैठे और कहा, आई लाई हेयर नो लॉन्गर, कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली हूँ, यानी ज़्यादा समय तक मैं बेड पर नहीं रहने वाली हूँ। एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर एंड टोल्ड हिम अनडॉन्टेड दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप वॉज शी what now wanted. अब वो सॉरी ये पोइट कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर ने फादर को बुलाया
पोइट के फादर को बुलाया एंड अपनी विश उन्हें बताई, और कैसे बताई, अनडॉन्टेड मीन्स विद फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियास्टिकली, दैट व्हाट शी वांट्स, क्या वो चाहती है, दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप, कि वो क्या चाहती है, ट्री टॉप पर, ट्री के टॉप पर एक हाउस चाहती है। और माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज, ही सेड दैट्स ऑल राइट, यू विल हैव व्हाट यू वांट डियर, I'll start work tonight. So यहाँ पे see how loving the father is, how loving the son is. So my dad means poet's father. वो कहते हैं कि मैं अपनी ड्यूटीज़ को जानता था, तो उन्होंने कहा कि ओ दैट्स ऑल राइट, हाँ ठीक है, तुम जो चाहती हो डियर तुम्हें वो मिलेगा, और मैं आज रात से ही, टुनाइट, आज रात से ही अपना काम शुरू करूँगा। With my expertise, assistance, he soon finished the chore, made her a tree house with windows and a door. अब assistance means help. My expertise, my means, my कौन है यहाँ पर, poet. So ये कहता है कि my poet कहता है कि मेरी expertise यानी मेरी असिस्टेंस के साथ ही उन्होंने जल्दी ही, चॉ मीन्स वर्क, उन्होंने जल्दी ही अपना काम फिनिश कर दिया। कौन सा काम, ट्री हाउस बनाने का काम। और मेड हर अ हाउस, और एक घर को बना दिया, विद विंडोज़ एंड डोर्स, जिसमें उन्होंने विंडो और डोर्स भी यूज़ किए। So Granny moved up, and now every day I climb to her room with glasses and tray. So अब ग्रैनी जो है वो मूव्ड अप, वो ऊपर ट्री हाउस में चली गई हैं, और अब हर दिन, हर रोज़, आई क्लाइम टू हर, मैं उनके रूम में जाता हूँ ग्लासेस और ट्रे लेकर। शी सिट्स देयर इन स्टेट मीन्स स्टाइल, वो वहाँ पर एक स्टाइल में बैठती है, एक क्वीन की तरह से बैठती है, क्योंकि दिस हाउस इज़ फॉर हर, ये हाउस उनके लिए ही बनाया गया है और उनकी विश पूरी हुई है। सो वो एक स्टाइल से वहाँ पर बैठती हैं। एंड ड्रिंक्स शैरे विद मी, शैरे मीन्स, शैरे इज़ अ काइंड ऑफ वाइन। सो वो वहाँ पर बैठकर उसके अपने ग्रैंडसन के साथ शैरे ड्रिंक करते हैं। Then upholding her right to reside in a tree, and upholding her right यहाँ पे अधिकार, हक, कि इस तरह से उनका हक है to reside means live in a tree, कि वो ट्री में रहें, ट्री हाउस में रहें, ये उनका हक बनता है। क्यों हक बनता है? Because she had a strong passion of climbing trees. Now it's a short summary of the poem. In this poem, poet tells about his grandmother who was very fascinated of climbing trees. She even wanted to climb in her old days also. All the family members got afraid that she would have a great fall, and once she got stuck on tree. यहाँ पे हमने वही बताया है कि जो पोइट की ग्रैंडमदर है वो बहुत फैसिनेटेड है, उनका पैशन है क्लाइंबिंग ट्रीज़, और इस ओल्ड एज में भी वो ट्री पर क्लाइंब करना चाहती हैं, और सारे मेंबर्स उनके लिए डरते हैं कि वो कहीं गिर ना जाएं, और एक बार वो ट्री पर स्टक हो गए। सो शी वॉज रेस्क्यूड एंड प्रिस्क्राइब्ड बेड रेस्ट फॉर अ वीक। दैट वीक was like a hell for her. At last she asked her son for a tree house. Hence poet and his father completed her wish and made a tree house for her, where poet used to climb up every day and spent a good time with the mother, for they drank sherry and enjoyed the moment. So आगे क्या बताया गया है कि उन्हें बचाया गया और डॉक्टर ने उन्हें 1 वीक का बेड रेस्ट दे दिया। अब ये वीक ग्रैंड मदर के लिए कैसा था? इट्स लाइक अ हेल की तरह से था। और लास्ट में शी आस्क्ड हर सन फॉर अ ट्री हाउस
तो फिर पोइट ने और उनके फादर ने उनके विश पूरी की एंड मेड फॉर हर अ ट्री हाउस, जहाँ पर पोइट विद हिज ग्रैंड मदर एवरी डे स्पेंट अ गुड टाइम विद हर, उनके साथ एक बहुत अच्छा टाइम, एक क्वालिटी टाइम ही स्पेंड, एंड देन दे enjoyed the moment and drink wine to celebrate this moment, to celebrate this time. So this is your poem. I hope you understand it. Thank you, students.